Hello guys, welcome back to the very next session. And today's our topic is on we will be analyzing the non-cat baby mock, which was of only 50 questions. The main motive behind creating such type of mocks is to get used to such type of easy questions in the first go. स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के हर कोई मतलब स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक देने बैठेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट feasible for everyone. Hence, what we have done is we have created a baby mock for each. So now, right now, I had asked everyone to give the I had asked everyone to take the baby mock, non-cat baby mock. So I hope all you might have given the mock. So please start posting your scores on the group chat, or people you can privately text on the group chat. Okay, to me. So start posting your score. Yes, couldn't beat time. Parth, no problem. Start posting your score so I'll get to know what type of scores usually, what is the average score of this group. Okay. So after that I'll be starting the analysis part and start posting privately if you are not comfortable to post on the group chat. Bhagyesh, Raza, Alisha, Heath. Okay. चलो अच्छा है. Post. I want everyone to post your marks. Okay. Abhishek, nice marks. Great. उमेश वैभव cool चलो अच्छा हिमांशु don't post your percentage Amit, post the marks you have got out of 50. Yes, I can calculate the 42, but please post your marks. Yes, I'll be uploading this recorded session on the YouTube, so please don't worry if your friends are not able to attend this session. No issues. You can also afterwards rewatch this video if in case you are not able to understand a part of this. Okay. Nayan, great. Amit, 34th attempt. Okay. चलो आज का जो सेशन था, आज का जो सबने मॉक दिया था, आई हैव गिवन यू 2 days टाइम फॉर दिस मॉक, राइट? एंड आई वांटेड कि हर कोई ये नॉन कैट बेबी मॉक दे ताकि एटलीस्ट यू कैन वॉच दोज क्वेश्चन in the first time, because many of you guys have firstly many of guys it must be your first mock in your life. Okay, so I can totally understand your marks, and even if it is zero, then two it is okay. So please don't worry, at the time of the analysis we will be covering all the points, so please don't worry. Okay, so whatever your marks will is below 10, below 20, below 30, below 5. Okay, so no need to worry. Amit Trivedi. Okay, chalo. So last time I'm questioning you. So am I audible to everyone? Please respond on the group chat. Yes. Shikpat, Nayan, Umesh. Yes. Okay. So ठीक है. चलो. So आज का जो मॉक दिया था, 2 दिन का टाइम दिया था. So I wanted कि हर कोई मॉक दे. ओके. चलो आज का दिन सबने मॉक दिया हो, कल भी दिया हो. स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग करते हैं अपने एनालिसिस का. सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. मैंने खुद ने सारे क्वेश्चंस देखे हैं कैसे है. ओके. सो जैसे कि अभी मेरा खुद का मैं पर्सनली रिव्यू बताता हूँ. ओके. सो ये मैंने खुद ने भी ये टेस्ट क्रिएट नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक. ये टेस्ट किसी और ने किया था. एक्चुअली व्हाट आई एम आस्क्ड टू इज कि एनालाइज दिस टेस्ट. ओके. सो ये टेस्ट मैंने खुद ने भी क्रिएट नहीं किया था, मॉक टेस्ट, बेबी मॉक टेस्ट. But personally I'll be reviewing this test for you all कि एज अ स्टूडेंट मेरे लिए भी कैसा होता टेस्ट. ओके. स्टार्टिंग ओवरव्यू बताता हूँ टेस्ट का कि बहुत अच्छा टेस्ट था. द रीजन इज इसमें हर चीज कवर कर ली है. सीईटी के एग्जाम होता, स्नैप का एग्जाम होता, तो इसमें हर चीज कवर कर ली है. there was one RC, one DI set, one puzzle set, there was input output set. So ये चीज हर चीज कवर कर ली है, तो बहुत अच्छी चीज बताई. Because the main thing is you can watch this question in the first time, because many of you guys might feel that this is the first time you have seen this question, और किसी किसी लिए तो first time ये puzzle था.
तो चलो अच्छा है, यू आर गेटिंग यूज टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, यस अमित त्रिवेदी वॉइस इज लो. ओके, सो द थिंग इज ये मॉक का 50 क्वेश्चन जिसने भी क्रिएट किया है, द टेस्ट क्रिएटर ऑफ सीईटी किंग, सो हैट्स ऑफ. क्योंकि बहुत 50 क्वेश्चंस का एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस बनाए थे और उसमें हर चीज को, हर एक चीज को कवर किया है. और यही चीज फॉर एग्जांपल सीईटी एग्जाम है, तो सीईटी एग्जाम में यही चीज का, जैसे कि डीआई का एक सेट था तो एक्चुअल सीईटी में 4 सेट होंगे, 5 सेट होंगे. आरसी एक था तो एक्चुअल सीईटी में 3 आरसी होंगे. सो इसका ही मल्टीपल आएंगे. ओके, सो व्हाट वी आर डन इज, ये सब एक टाइप का देखा जाए तो एक ओवरव्यू बताऊं तो इसमें हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सिलेक्टेड थे. इनपुट आउटपुट वाज देयर, फिर कोडिंग डिकोडिंग वाज आल्सो देयर. सो इसमें क्या है, सब बेसिक चैप्टर्स है प्लस. ओके, सब बेसिक चैप्टर्स करके भी और ओनली गोइंग टू द बेसिक्स यू कैन सॉल्व 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इजीली. नो नीड टू डू टफ क्वेश्चंस ऑफ एनी चैप्टर्स एज ऑफ नाउ. ओके, हर चैप्टर का बेसिक बेसिक करने के बाद भी आज का जो मॉक है उसमें 50 आउट ऑफ 50 आ सकता था. वर्बल में मैं एक्यूरेसी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वर्बल में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, पर नहीं, वर्बल इम्प्रूवमेंट होके आगे आ सकता है. बट एक्सेप्ट वर्बल, लॉजिक और कॉन्ट्स में 100 बाकी का आउट ऑफ आ सकता है. ओके, सो ओवरव्यू ऑफ दिस मॉक इज इजी क्वेश्चंस थे, हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस थे, मोस्ट ऑफ चैप्टर्स के सीईटी में आने वाले, स्नैप में, सीमैट में आने वाले. ओके, सो यही एनालिसिस ओवरव्यू था ये मॉक का. ओके, समझा अभी किसी को, अभी ओवरव्यू किसी को समझा अभी? इफ एनी डाउट रिगार्डिंग द ओवरव्यू ऑफ दिस मॉक, कि ऐसा ही मॉक आने वाला है मॉक एग्जाम में कि क्या है, कुछ एनी डाउट प्लीज पोस्ट ऑन द ग्रुप चैट or else I'll be starting the analysis for each section. Voice low. Okay, I'm audio issue. So is it now proper? Am I audible properly now? Shivangi. Okay. Yes, Mithil, your question. So time is the main problem ना. Okay, चलो, टाइम का ऐसा करना चाहिए था कि डू नॉट टारगेट कि 50 के 50 क्वेश्चंस करने, चलेगा इन द फर्स्ट गो. ओके, जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं जिसमें कम टाइम लगता है, तो व्हाई नॉट चूज उसको फर्स्ट. उसको अगर चूज पहले करोगे सो इट वुड बी इजी एंड इट वुड बी अ टाइम सेविंग फैक्टर फॉर यू इन द फर्स्ट गो. बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपने सबने 10-10 मॉक दे दिया हो, उसके बाद आप सब ये मॉक, उसके बाद ये एनालिसिस और उस पे लेक्चर पे बैठे हो, सेशन अटेंड करे. ओके, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सबने 10-10 मॉक दिया हो, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ओनली. कि जो इजी क्वेश्चंस आएंगे आई विल बी चूजिंग दोस क्वेश्चन ओनली, एंड दोस क्वेश्चंस हु आर लेंथी और दे आर टफ और they are time consuming, so I'll be leaving those questions in the first go. And at the end, if there is time, sufficient time for me still left, then only I will be jumping on those questions which I have left earlier. ओके, सो स्टार्टिंग में जो इजी इजी क्वेश्चंस है, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन टफ है तो व्हाई टू ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो ट्राई करने का जा रहे क्वेश्चन है उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको सबसे पहले ट्राई करना है. नो नीड फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ना है, छोड़ दो फर्स्ट क्वेश्चन. जरूरी थोड़ी हर चीज क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जरूरी है करना, नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर लेंदी लगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर लेंदी, इजी भी कभी कभी छोड़ना पड़ता है. बिकॉज सपोज जैसे कि कुछ चैप्टर्स आपने किए नहीं हो और वो चैप्टर आप लेके वो चैप्टर का क्वेश्चन देखोगे और भले ही वो 2 लाइन का है क्वेश्चन, भले इजी क्वेश्चन है, बट इफ यू आर नॉट डन विद द चैप्टर्स और वो चैप्टर का आपने प्रैक्टिस नहीं किया या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, सो व्हाई टू टाइम वेस्ट, why to waste time on those type of questions. Okay, even if they are easy, even if they are less time consuming, then too we have to leave those questions because we are not used to such type of question, and it will take, it will obviously take more time to understand the question. Okay, so those who are easy questions or you are used to those questions, basically जो chapters लेक्चर होते हैं उसका जिसने प्रैक्टिस कर लिया, जैसे कि पीएनसी का क्वेश्चन था. ओके, पीएनसी का आज क्वेश्चन था कौन में, तो पीएनसी का जिसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले, सो उसके लिए तो बहुत इजी होता है वो क्वेश्चन करना. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो जिसने पीएनसी सॉल्व किया है, प्रैक्टिस किया है, तो वो क्वेश्चन करना जरूरी था बिकॉज इट वाज इजी क्वेश्चन. ओके, जिसने कोडिंग डिकोडिंग का सेट सॉल्व किए हैं पहले, तो उसको कोडिंग डिकोडिंग करना ही चाहिए था. जिसने पजल सॉल्व किया है पहले, तो पजल उसके लिए उसको पजल करना चाहिए था. जिसने डीआई सॉल्व नहीं किया उसको डीआई नहीं करना चाहिए सॉल्व पहले कभी भी.
ओके, जिसने डीआई की प्रैक्टिस सॉल्व की है, डीआई सेट सॉल्व किया है, उसको डीआई सेट पे अप्रोच करना चाहिए। और जिसने पजल लाइफ में कभी पजल अभी तक चूज सिलेक्ट ही नहीं किया, पजल स्टार्ट भी नहीं किया, पजल होता क्या वो नहीं पता, तो क्यों पजल रीड करना। आई नो कि आप सॉल्व नहीं करोगे, पर पजल को रीड तो करोगे स्टार्टिंग में, वो आदत रहती है सबकी। तो जो क्वेश्चन आपने ने कभी देखे भी नहीं है और जिस चैप्टर पे आया है वो चैप्टर आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया है, सो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि पजल है, तो पजल जिसने आज तक लाइफ में नहीं किया है, तो वो पजल को क्यों रीड कर रहे हो। किसी किसी ने, आई एम प्रिटी श्योर कि किसी किसी ने वो मिस्टेक की होगी जिसका पजल नहीं किया है, दोज हु आर बिगनर्स और दोज हु आर न्यू कमर्स टू दिस प्रिपरेशन। ओके, सो जिसका जिसका न्यू स्टार्ट है, सो पजल अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया है, आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या करना होता है उसमें, सो वाई टू वेस्ट टाइम रीडिंग फर्स्ट 4 लाइन ऑफ दोज क्वेश्चंस। ओके, सो ये एक अप्रोच था। कमिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इजी था, एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया बिकॉज, हाँ अमित, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था, नहीं, यू आर न्यू टू दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो अच्छा हुआ नहीं किया। इट इज राइट कि आपने अभी छोड़ दिया, आगे जाके वो इजी होगा और जब सिखाया जाएगा तब आई एम श्योर कि ये 50 में से 40 मार्क्स कोई भी इजीली ला सकता है, क्योंकि आगे जाके ये सब एक एक करके आने वाला है। एब्स्ट्रैक्ट जब सिखाया जाएगा, आरसी नहीं जमा हिमांशु, तो जिसको आरसी नहीं जमा वो रीडिंग करेगा 2 महीने तक लगातार, तब जाके उसको आगे इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो अभी के लिए उसको आरसी छोड़ना चाहिए था, जिसको आरसी नहीं होता है हमेशा सॉल्व। तो अभी के लिए जैसे कि जिसका वर्बल स्ट्रॉन्ग, जैसे, हाँ, व्हाट वील डू इज, जिसका जो जो सेक्शन मतलब वीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो ऐसे अपने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिसका कॉन्स वीक है, तो जिसका सबसे पहले कॉन्स वीक है ना, और या फिर जिसने कॉन्स में प्रैक्टिस की भी नहीं है, तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए था पता है, उसको करना चाहिए था वर्बल एंड लॉजिक ओनली इन द फर्स्ट गो, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर लेफ्ट विद सफिशिएंट टाइम स्टिल, उसके बाद जो कॉन्स में जो इजी इजी क्वेश्चन और दोस क्वेश्चन व्हिच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, वो क्वेश्चन पे अप्रोच करना चाहिए। ओके, तो जिसका कॉन्स वीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि जो इजी इजी क्वेश्चन है एकदम कॉन्स का वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो भी वर्बल, और जिसका जो कॉन्स में इजी इजी क्वेश्चन है वो भी नहीं कर पा रहे हो और यू आर न्यू टू कॉन्स, सो उसको क्या करना चाहिए, यू शुड गो विद वर्बल एंड लॉजिक, और वर्बल और लॉजिक मोर कन्विंसिंगली। लॉजिक को प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो 1 हफ्ते में ही आपको इम्प्रूवमेंट सीधा दिख जाता है। ओके, लॉजिक में इतना मतलब इतना टफ नहीं आता है कि मैंने आज प्रैक्टिस किया और फिर मॉक में आ ही नहीं रहा है, वो आएगा मॉक में। ओके, सो 1 वीक भी अगर लॉजिक पूरा प्रैक्टिस कर दोगे, तो लॉजिक में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप सब। ओके, सो जिसका कॉन्स वीक है उसको तो पहले चैप्टर्स जो टारगेट चल रहे हैं, डेली टारगेट चल रहे हैं, उसको पहले उसके साथ प्रोसीड करो। फिर उसके बाद डेली टारगेट्स में जो कॉन्स का चल रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट मॉक में जो चैप्टर्स का आपने प्रैक्टिस किया उसको ही सॉल्व करो, और बाकी जो चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हो और आपने कभी देखा ही नहीं कॉन्स के, सो उसको ऑन द स्पॉट छोड़ दो और लॉजिक को ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि सेम वीक लॉजिक भी आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्स भी प्रैक्टिस करोगे, पर कॉन्स सारे चैप्टर कवर नहीं हो जाएंगे, पर लॉजिक ज्यादा चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि लॉजिक इजी है और फर्स्ट गो में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इजीली। ओके, एंड वर्बल, जिसको वर्बल क्या है पता है, खुद से जैसा लग रहा है उसको वैसा सॉल्व करके देख लो। एंड प्रिटी आई एम अगेन इंसिस्टिंग कि 2 महीने तक रीड करोगे तब जाके वर्बल में इंप्रूवमेंट आएगा। नाइट, ओके, नाइट लेवल जो भी सर मेरा वर्बल वीक है, तो जिसका वर्बल वीक है, तो हाँ, अभी मैंने बता दिया कॉन्स वीक है जो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। सो ही और शी शुड अप्रोच फर्स्ट विद लॉजिक एंड देन वर्बल एंड देन कॉन्स। अभी सेकंड, जिसका वर्बल वीक है, जिसका वर्बल वीक है उसको भी पहले लॉजिक ही करना चाहिए, एंड देन उसके बाद अप्रोच करना चाहिए कॉन्स। ओनली दोज क्वेश्चन इन कॉन्स जिस चैप्टर की आपने प्रैक्टिस कर चुके हो। तो वर्बल वीक है तो वर्बल को एक बार के लिए छोड़ दो, बिकॉज उसको वर्बल को अच्छा कर पाओगे तभी 2 महीने तक रीडिंग करोगे, तो 2 महीने बाद वर्बल में थोड़ा इंप्रूवमेंट आना लगेगा। वो भी थोड़ा मैं बोलता हूँ पता है, वर्बल में अगर अभी हर दिन रीडिंग करोगे तब जगह थोड़ा इंप्रूवमेंट तो आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो वर्बल का रीडिंग उसको बहुत एकदम लाइटली मत लो, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टास्क कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर कॉन्स एंड लॉजिक चैप्टर्स प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस। सो वर्बल में क्या है, लोग क्या मानते हैं रीडिंग करना है यार, बाकी क्या है, कौन सा अगर चैप्टर करते हो उसके 30 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करते हो, सो एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि 30 क्वेश्चन अब मुझे सॉल्व होते हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव दिखता है। वर्बल में 2 महीने तक रीड करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वर्बल में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए उसको आंखें बंद करके रीडिंग करना मतलब
हैंड्स डाउन रीडिंग करना जरूरी है, उसको ऐसा आदत बना लो, मतलब एक लत है कि भाई हर दिन 3 घंटे रीडिंग करना है, बिना उसके कुछ आउटपुट सोच के कि मुझे कुछ मिलने वाला है, 2 महीने बाद इंप्रूवमेंट आने वाला है, बिना सोचे मेरा एक जिद है उसको रीड करना है, 3 महीने तक रीड करना ही है। ओके सो जिसका वर्बल वीक है, अभी 2 महीने तक उसको इंप्रूवमेंट करना है, और अभी के लिए मॉक में उसको क्या करना है, वर्बल को छोड़ के लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद कॉन्च पे उसी पे स्पेसिफिकली कौन सा लॉजिक पे उसी क्वेश्चन पे जंप करो जिस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर चुके हो, जिस चैप्टर का प्रैक्टिस कर चुके हो। ओके थर्ड, जिसका लॉजिक ही वीक है, या फिर लॉजिक हर किसी का वीक नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को होते हैं, रेयर, मतलब 99% का तो लॉजिक कोई भी इजी होता है, इसीलिए लॉजिक मतलब 1% केस होता है जिसको लॉजिक ही टफ लगता है, ऐसे भी होते हैं कभी कभी, तो वो थोड़ा क्या बोलूं अभी मैं, पर हाँ जिसका लॉजिक वीक है, या फिर लॉजिक वीक नहीं बोल सकता हूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो नया है लॉजिक के लिए भी, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना बताऊंगा लास्ट में। तो जो लॉजिक में नया है ना, जैसे कि सपोज आई हैव जॉइंड दिस प्रिपरेशन टाइम रिसेंटली विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ, सो लॉजिक अगर तो मैंने अभी तक मैंने एक भी चैप्टर प्रैक्टिस नहीं किया, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज 1 हफ्ते तक लॉजिक प्रैक्टिस करो, जो भी चैप्टर दिखे उसको प्रैक्टिस कर लो, बस वो इजीली हो भी जाएगा, एक दिन में एक चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, लेके बैठो अच्छे से पूरा दिन 6 घंटा, तो आप ये करोगे तो 1 हफ्ते में 6 चैप्टर आपके आराम से हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मॉक में सीधा लॉजिक में तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा और लॉजिक में स्कोर आएगा, बिकॉज लॉजिक इज द मेन थिंग, मेन सेक्शन जिसमें स्कोर इजीली आ सकता है। ओके प्रज्ञा, सर आई एम बिगनर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, लॉजिक एंड कॉन्ट्स में अरिथमेटिक, अगर इफ यू आर स्टार्टिंग विद कॉन्ट्स, स्टार्ट विद अरिथमेटिक, एंड लॉजिक में क्या करो, जो डेली टारगेट चल रहे हैं उसको कंप्लीट करो बस, जो अभी स्टार्ट किया है, जो पहले स्टार्ट किया है, सबको डेली टारगेट्स अभी से ही स्टार्ट करना है, दोज हु आर न्यू अगेन रिपीटिंग, ऐसा मत समझो कि कनेक्शन है, आपने पहले छोड़ दिया, आपको लग रहा होगा कि पहला पोर्शन हो चुका है इसीलिए मुझे शायद नहीं समझ रहा है, नहीं, वो आप डाउट पूछो, आपको नहीं समझ रहा है, बिकॉज आपके लिए जैसे कि ब्लड रिलेशन का आज लेक्चर है, तो ऐसा मत समझो कि पहले आई एम न्यू, जिसका फर्स्ट लेक्चर है, समझो आज लेक्चर हुआ ब्लड रिलेशन का, तो किसी किसी को लगेगा मुझे आज नहीं समझ रहा बिकॉज पहले कुछ लेक्चर हुए होंगे और जिसमें मैं नहीं था इसीलिए मुझे नहीं समझ रहा, नहीं, ब्लड रिलेशन का आज लेक्चर हो रहा है तो वो सबके लिए फर्स्ट टाइम ही है, तो आप बस एक काम करो, लेक्चर जब होगा ना तो प्लीज डाउट पूछते रहो करो लेक्चर में, तो गेट क्लियर विद योर डाउट्स एट द ऑन द स्पॉट। ओके उससे क्या होगा, थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसका लॉजिक वीक है तो 1 हफ्ते तक लॉजिक प्रैक्टिस करो, डेली टारगेट्स भी करते रहो, साथ साथ में वो करना जरूरी है, जो फर्स्ट आज ही ज्वाइन किया, सुबह भी ज्वाइन किया हो तो भी डेली टारगेट कल से कंप्लीट करना चालू कर दो। ओके जो भी चैप्टर है उसको चालू कर दो कैसे भी करके, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है लॉगिन आईडी में, तो वो देख के लेक्चर नहीं समझा तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर रीड बार बार देख लो। ओके बट आई एम इंसिस्टिंग कि बार जो डेली टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉक में इंप्रूवमेंट दिखेगा। ओके सो कमिंग टू द कॉन्स, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था फर्स्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट तो आया जिसका ये, हाँ ये क्या था पता है, डेटा सफिशिएंसी नहीं, डेटा कंपैरिजन है बेसिकली, डेटा कंपैरिजन बहुत लोगों के लिए नया था, सो डोंट वरी, जब आगे डेटा कंपैरिजन के लेक्चर होंगे ना तब समझ में आ जाएगा, तो जिसके लिए नया था इसमें करना क्या है, किसी किसी को तो समझा नहीं होगा कि इसमें करना क्या है, डोंट वरी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सब आप सब ने सॉल्व किया हो। ओके तो डेटा कंपैरिजन के लेक्चर होगा, एंड दिस इज टाइम एंड वर्क का अगर सॉल्व किया होगा, लेक्चर अटेंड किया होगा, तो दिस वन वाज इजी क्वेश्चन, जिसको आज के मॉक में 50 क्वेश्चन में जिसको नहीं समझा होगा वो क्या करेगा अभी, नेक्स्ट डे का डेली टारगेट्स में यही होने वाला है शायद तक कि मॉक में जितने क्वेश्चन है उस सबको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, सो उस क्वेश्चन को डाउट जो क्वेश्चन नहीं समझ रहे ना, तो डाउट सॉल्विंग फैकल्टी है विधान सर अभी के लिए एज ऑफ नाउ। ओके सो वो फिर डाउट सॉल्विंग फैकल्टी को पर्सनली व्हाट्सएप पे पिंग करना रहता है, 2 to 6 डाउट सॉल्विंग फैकल्टी है, सो पिंग हिम व्हाट्सएप, पिंग हिम पर्सनली ऑन द व्हाट्सएप, और ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके दिस वन वाज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ओके जिसका पीएनसी जिसने किया हो, ये लास्ट वीक में था पीएनसी। ओके सो आई एम एक्सपेक्टिंग जिसने जिसने पीएनसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा वो करना है, और जिसका न्यू है पीएनसी का ये क्वेश्चन जिसके लिए बहुत न्यू है तो उसके लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नाउ, आगे जाके जब वापस डेली टारगेट में वापस पीएनसी ये सब आएगा तब प्रैक्टिस करना। ओके दिस इज अ बॉर्ड मास बेसिकली इजी क्वेश्चन राउंड ऑफ करके, सो जैसे जैसे रैंडमली जाते हैं थोड़ा। हाँ आरसी है, यस दिस वन इज द आरसी। सो आरसी जिसको अभी नहीं समझा होगा, जैसे कि
तो उसको रीडिंग करने के बाद ही समझेगा। सर हाँ डाउट है, चलो उनमें श्रोट है। सर एनमैट के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाए? एनमैट के लिए अभी मत स्ट्रैटेजी बनाओ, जब एग्जाम होगा तभी बनाओ। अभी कंसेप्ट समझो और प्रैक्टिस करो यार, एटलीस्ट क्वेश्चन। जिसका कॉन्स वीक है तो बेसिक टारगेट्स कंप्लीट करो, बेसिक सारे क्लियर करो सबसे पहले, मेन कंसेप्ट। अगर आपको लगता भी है कि मेरा बेसिक हो चुका है, नहीं, कुछ कंसेप्ट तो एकदम माइनर बेसिक के कंसेप्ट रह जाते हैं, उसको अच्छे से ध्यान रखो। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये क्या है पता है? ये इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज का चैप्टर। दोज हु आर न्यू टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो आई एम इन्फॉर्मिंग कि दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर कम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम अंडर द इनइक्वालिटीज चैप्टर। ये सीईटी में आते हैं फॉर श्योर, ऐसा ये सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीईटी में आए और मैंने खुद ने इस बार सॉल्व किए। दिस वन वाज इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। दिस वन इज द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, जो आपके येलो बुक में, रेड बुक में मिलेंगे क्वेश्चंस। तो ये भी सीईटी में आते हैं। कैट में डू नॉट एक्सपेक्ट कि, नॉन कैट एग्जाम में आते हैं। हाँ, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, प्लस ब्लड रिलेशन, सो इसमें भी आएगा। ये थोड़ा लेंदी था, तो आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन को छोड़ देना बेटर था। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, नो डाउट, तो इसको छोड़ देना चाहिए था। भले ही हो जाता था सॉल्व, पर बहुत टाइम लगा था, 5 मिनट लगा देता था ये क्वेश्चन। तो इसको छोड़ना सीखो, ठीक है? राहुल डाउट है नयन का 4 4 5 मार्क्स। हाँ राहुल, नयन अपना क्वेश्चन रिपीट करो, मुझे समझा नहीं। राहुल, रतुल सॉरी, इज इट वर्थ इट टू डू आरसी कंसिडरिंग ओनली 2 to 3 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दैट? हाँ चलेगा ना, मतलब अगर आरसी में जरूरी नहीं कि 5 क्वेश्चन करो, उसमें जो 2 क्वेश्चन इजी लग रहे हैं विच आर फैक्ट बेस्ड, मतलब फैक्ट बेस्ड क्या होते हैं? जो क्वेश्चन दिया है उसको डायरेक्टली आरसी में आंसर मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन कर लो बस। आरसी पूरा रीड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, आंसर डायरेक्ट मिल रहा है आरसी में तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो आरसी के आरसी, जिसका वर्बल वीक भी है। ओके। नयन, डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन इन सीईटी फॉर 5 मार्क्स। यस, डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं। कैट और नॉन कैट बता देना सर। हाँ हिमांशु, फैक्ट बेस्ड के लिए पहले क्यों पढ़ना है क्या? हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा ना। वाई टू वेस्ट रीडिंग द आरसी फुल? आरसी अगर सॉल्व करना ही नहीं, फैक्ट बेस्ड ही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन रीड करो, उसका आंसर आरसी में मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। हाँ हाँ, तो नयन रुक जाओ, हाँ प्रोसीड करना था मुझे। ओके। हाँ ये वर्बल का क्वेश्चन है, इसमें ये पर्सनली जिसको जो समझता होगा ना उसके ऊपर है, बिकॉज जिसका वो कैप थोड़ा अच्छा होगा वो समझ पाएगा। आगे जाके वर्ड पावर मिडी ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा आपका सबका, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा करने आ जाएगा। वर्ड पावर मिडी के भी वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं यूट्यूब पे, सो प्लीज वॉच। हाँ ये स्टार्टर्स के, ये भी सीईटी में आते हैं फॉर श्योर, सीईटी में भी आते हैं। सो आपको ऐसे मॉक में भी आगे दिखेंगे, तो इसका भी चैप्टर जब होगा सॉल्व, इसके भी वीडियो है शायद से लॉगिन आईडी में, और आगे जाके सॉल्व किया जाएगा वर्बल के, स्पेशली ये वर्बल में आते हैं। तो वर्बल के 50 क्वेश्चन जब सीईटी में आते हैं तो आ जाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टार्टर्स के, प्रोबेबल स्टार्टर्स उसको बोलते हैं। हाँ दिस वन इज प्योरली बेस्ड ऑन वोकैबलरी, वोकैब के क्वेश्चंस भी आते हैं सीईटी में, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स फॉर श्योर। सीमैट में भी 5 क्वेश्चन आते, सीमैट में 5 क्वेश्चन नहीं, पर सीमैट में भी वोकैब के क्वेश्चन आते हैं, एनमैट में भी क्वेश्चन आते हैं वोकैब बेस्ड। हाँ दिस वन इज fill in the blanks वाला, this also comes in the verbal section in CET and other exams। हाँ ग्रामर, ग्रामर पे बेस्ड ग्रामर क्वेश्चन, ग्रामर पे क्वेश्चन आते हैं सीईटी में भी आते हैं। हाँ ग्रामर को कैसे अप्रोच करना चाहिए पता है? ग्रामर का जब आपका लेक्चर होगा ना वर्बल में, जब वर्बल सेक्शन का जब पढ़ते हैं तो ग्रामर का आपका लेक्चर होने वाला है। सो इट इज, आई एम प्रीटी श्योर कि वर्बल ग्रामर आपका एक लेक्चर में पूरा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, आई एम श्योर। तो ग्रामर भी एक इनडायरेक्टली आपको कैसे, इनडायरेक्टली आपका कैसे बढ़ने वाला पता है? रीडिंग से। वंस यू आर रीडिंग, हाँ अभी एक जैसे कि किसी ने पूछा था विच न्यूज़पेपर टू रीड, अब न्यूज़पेपर में अगर बोलूँ तो मिंट पढ़ो, मिंट। दोज हु आर न्यू टू द न्यूज़पेपर, मतलब जो न्यूज़पेपर पहले से पढ़ता है था ही नहीं कोई, तो मिंट से स्टार्ट करो। पर्सनली आई एम इंसिस्टिंग कि मिंट बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इजीली उसको समझ पाओगे, इंटरप्रेट कर पाओगे। भले ही टफ से टफ डेटा आर्टिकल भी पढ़ो, उसमें से कोई भी कुछ भी पढ़ो, पर मिंट से अभी स्टार्ट करो प्लीज। 2 महीने तक मिंट न्यूज़पेपर पढ़ो। हाँ वो थोड़ा एंटी बीजेपी है, पर वो थोड़ा झूठ भी बोलता है, बट अपने को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। सो वो एंटी मोदी एंटी इंडियन है, तो उसको भी थोड़ा छोड़ दो, उसको साइड में रखो, पर मिंट को आप समझ पाओगे। ओके, तो मिंट, हाँ नयन समझ रहे हो ना आप? तो उसको मतलब वो क्या बोलना चाहता है वो छोड़ दो। इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी के बारे में थोड़ा अच्छा बताता है वो,
बिकॉज मैंने भी उसको रीड किया है। एंटी गवर्नमेंट है ये, एंटी मतलब वो हर एंटी के मतलब हर चीज का बुराई बताएगा वो, और कुछ नहीं है। जैसे कि हिंदू भी है, हिंदू भी मैं क्योंकि हिंदी हिंदू मैंने रिसेंटली रीड किया था, तो हिंदू का भी आप सब देखोगे ना तो उसका क्योंकि आपको भी सब आगे पता चलेगा ना, तो आपको भी पता चलने लगेगा कि वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है। एक ऑथर क्या होता है पता है वर्बल में, आपको एक चीज बताता हूँ। वर्बल का एक ये स्ट्रैटेजी है देखा जाए तो, वर्बल में ऑथर एक आपको एक पॉजिटिव साइड ले जाएगा एक चीज के, या फिर एक नेगेटिव साइड लेके जाएगा। जैसे कि मैंने मिंट का बताया, तो कभी कभी क्या है गवर्नमेंट के नेगेटिव साइड ले जाता है। हिंदू जो है, हिंदू तो आई एम प्रिटी श्योर कि हिंदू का आप देखोगे ना आर्टिकल रीड करोगे तो उसके आर्टिकल में सारे जो क्रिटिक्स है, हाँ नो डाउट हिंदू के जो आर्टिकल्स होते हैं वो टॉप क्लास मतलब अलग ही वर्बल लेवल होता है। आई एम नॉट डाउटिंग ऑन सच वर्बल। सो उसमें जो वर्बल का लेवल होता है अलग ही लेवल होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है हिंदू में। पर हिंदू का आप खुद अगर रीड करना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में किसी को समझता नहीं, अगर हिंदू अभी रीड करने जाओगे और इफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट द डेटा, तो उसका आपको सीधा पता चलने लगा कि सो द पेपर न्यूज पेपर इज टेकिंग यू टू द नेगेटिव साइड ऑफ द गवर्नमेंट, कि पूरा नेगेटिव बोलते जा रहा है। सेम अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, ऐसा ऐसा पढ़ोगे, तो आपको पता चलने लगेगा कि ऑथर क्या बोलना चाहता है। दिस इज द मेन थिंग, जब आरसीबी रीड करते हो तो ऑथर क्या बोलना चाहता है वो ज्यादा जरूरी है। सही है, सही क्या है गलत क्या है वो तो आपको भी इंटरनली पता होता है, पर वो सब साइड में रख के। जैसे कि मैं आपको हिंदू बताता हूँ, हिंदू अभी जैसे कि कोविड-19 के ऊपर भी बोलता है, कुछ गलत ही उसने बताया था एक दिन, मैंने रीड किया था अभी रिसेंटली, तो उसमें भी वो गलत बता रहा है। वो बताता है कि भाई वर्कर ऐसे जा रहे, पर अभी वो लॉकडाउन भी जरूरी था ना ऑब्वियसली, पर वो जरूरी था लॉकडाउन वो नहीं बताता है। बिना बोले बिना बताए बंद कर दिया, लॉकडाउन चालू कर दिया, ये सब बता, तो वो स्टार्ट रीड करोगे तो उसमें ही पता चलता है वो नेगेटिव साइड ले जा रहा है। पर मैंने क्यों पूरा रीड किया, तो मैं रीडिंग प्रैक्टिस हो रही है मेरी उससे। मुझे पता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, पर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता चल जाएगा। आई एम नॉट सपोर्टिंग और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट पता तो चल रहा है नेगेटिव साइड लेके जा रहा है कि पॉजिटिव। सो आपके जो क्वेश्चन होंगे आरसी बेस्ड, सो आपको भी आंसर में नेगेटिव वाला आंसर चूज करना है कि पॉजिटिव आंसर चूज करना है। सो वो हेल्प करेगा। सो वर्बल में यही स्ट्रैटेजी है। ओके, सो वर्बल बहुत ज्यादा हो गया आज, ठीक है। सो लॉजिक अभी आगे देखते हैं। वर्बल का आरसी समझ में आ गया ना? हाँ, जर्नलिज्म का काम ही है सवाल करना, बट सिर्फ सवाल करना और सही चीज पे बोलना भी जरूरी है ना। हाँ मतलब जरूरी है भाई, हर चीज पे सवाल करना भी जरूरी है, हर हर किसी को। आई एम नॉट अ मोदी सपोर्टर और एनीथिंग, बट हर किसी को, गवर्नमेंट किसी की भी हो, पर ऑपोजिशन भी जरूरी है। बट मैं वो बोल रहा हूँ कि वो नेगेटिव साइड ले जा रहा है पॉजिटिव साइड ले जा रहा है, वो उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआई का सेट, डीआई का सेट इजी था, कैलकुलेशन थोड़ा था। सो जिसने डीआई के सेट पहले सॉल्व किए हैं तो उसको करना चाहिए था, और दोज हु आर न्यू टू द डीआई क्वेश्चन उसको करना जरूरी नहीं है। डीआई का सेट है ये भी। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ ये एकदम इजी क्वेश्चन आपके हैंडआउट में भी है, जैसे कि ये तो अभी अपने कर भी सकते हैं, पर वेरी इजी क्वेश्चन लॉजिक में आता है। आपके हैंडआउट में मिलेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। हाँ ये भी लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं। नॉट अज्यूम द 29th क्वेश्चन एज अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ओके, हाँ ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। दिस ऑल्सो कम इन द कोडिंग डिकोडिंग आई कैन से। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये आगे जाके आपके मॉक्स में भी आने वाला है, तो इसको जब मॉक जब सॉरी सॉल्व करना चालू करोगे ना कल, जब हर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको वापस, सो इसको सॉल्व करना आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्रोच करना है इसको, और आपके हैंडआउट में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। सो डोंट वरी। ये स्टेटमेंट एंड असर्शन, कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन है। कॉज एंड इफेक्ट भी आपके बुक में है, जब लेक्चर्स, इसके भी अलग से लेक्चर होने वाले हर चैप्टर के, तो मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। ये कॉज एंड इफेक्ट वाले चैप्टर्स का क्वेश्चन है। सो अभी रिसेंटली तो आपका कॉज एंड इफेक्ट हुआ नहीं, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ये सब सॉल्व करो। ओके, हीथ डीआई अच्छा था, चलो अच्छा है। जिसके लिए डीआई इजी था उसको करना चाहिए था। हाँ पजल है, ये पजल इजी था, हर किसी को करना चाहिए था जो पजल कर चुके हैं लास्ट 3-4 मॉक, जिसने 2-3 मॉक दिए हैं, या फिर जिसने लास्ट मॉक दिया है उसके लिए भी, या फिर जो पजल का लेक्चर बैठे हैं उसके लिए भी। सो ये मॉक पजल इजी था। दोज हु आर न्यू टू फर्स्ट टाइम पजल कर रहे हो तो उसको छोड़ दो, चलेगा, आगे जब पजल के लेक्चर होंगे तब अटेंड करो। इजी है, आप खुद जब वापस इस पे आओगे ना, जब पजल लेक्चर अटेंड करने के बाद ये ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ अभिषेक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यस हिमांशु रतुल।
अगेन इजी पजल। हाँ, दिस इज इनपुट आउटपुट। हाँ, इनपुट आउटपुट कैसे क्वेश्चन आता है, इनपुट आउटपुट का एक स्पेसिफिकली एक अलग लेक्चर होने वाला है आगे। अब सब आगे होगा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सो ये इनपुट आउटपुट का भी आगे होगा। इनपुट आउटपुट का एक्सप्लेनेशन अभी दिस क्वेश्चन एट ऑल। हाँ, इनपुट आउटपुट के लेक्चर अटेंड करो सबसे पहले, सुनो आप सब। इनपुट आउटपुट का लेक्चर होगा तब इसको समझना, अभी हाई करने बैठोगे तो नहीं समझेगा। और जिसको जो पहले कर चुका है तो वो सोल्यूशन देख के भी आपको रीड करना हो जाएगा। पहले मुझे सारे क्वेश्चन पहले आपको सबको बताने। बेसिक लेक्चर आई थिंक 2 महीने में सब खत्म हो जाएगा। चलो इनपुट आउटपुट देखना है क्या सबको? नैन, ओके चलो देखते हैं, मैं भी देखता हूँ लॉजिक क्या है। एफ ई लॉजिक देखते क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसमें ऐसा है, इस सबको आप इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ ऐसा सॉल्व करना। ये सुई है ना, इसको 1 मानो नंबर। ये पूरा स्टेटमेंट लिख दो, इनपुट पूरा लिख दो, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 7 लिख दो। अभी एफ ई को क्या माना था मैंने, फोर्थ नंबर माना था, तो फोर्थ लिखो। तो ऐसे नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा जब नंबर्स में अज्यूम करोगे ना। तो क्या करो, इनपुट को पूरा लिख दो और उसको 1 मानो, नंबर दे दो, फिर हर नंबर वाइज इसको इंटरप्रेट करो, 4 5 6 जो भी हो रहा है, फिर इन, ठीक है। तो इसको ऐसा करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, आई विल सॉल्व इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टर द एंड। ये मुझे अभी पहले प्लीज टेस्ट सेशन कंप्लीट करने दो, टाइम कम बचा अपने पास। हाँ, दिस इज अ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन रिसेंटली अभी लेक्चर हुआ था, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, और जो फर्स्ट है प्लीज, जो जो जिसका भी 1 2 दिन हुआ है ज्वाइन किया, सो आई एम नॉट एक्सपेक्ट, आराम से करो सॉल्व। जो जो नए हैं प्लीज ये हफ्ते टारगेट कंप्लीट करो, उसके बाद अप्रूव फिर मॉक देना। ये मॉक सिर्फ आपको वही बैठने का था 50 मिनट तक। जिसने ब्लड रिलेशन लेक्चर बैठा है वो उसके लिए सॉल्व करना जरूरी था। हाँ, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन द सिलोजिज्म चैप्टर। सिलोजिज्म चैप्टर करके एक अलग से लेक्चर होने वाला है पर्टिकुलरली सिलोजिज्म। अगर मैं बताऊं, सीमैट में आता है, प्लस सीईटी में आता है, एनमैट में आता है, स्नैप में आता है, कैट को छोड़ के अदर नॉन कैट एग्जाम में आता है। और दिस इज द इजीएस्ट, आई कैन से इजीएस्ट क्वेश्चंस, इजीएस्ट चैप्टर। ब्लड रिलेशन से भी इजी। बस इसको स्टार्टिंग में ब्लड लेक्चर अच्छे से समझ लोगे ना तो बस, फर्स्ट टाइम जिसने समझ लिया सिलोजिज्म उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा सिलोजिज्म। सो फर्स्ट टाइम आपका सबका जब सिलोजिज्म का लेक्चर होगा, सो उसको अच्छे से समझ लेना, डाउट्स होंगे तो उसी ऑन द स्पॉट पूछ लेना। ये है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में, सीमैट में भी आते हैं क्वेश्चंस 1 2। स्नैप आई कैन एक्सपेक्ट, एनमैट में आई कैन नॉट से बिकॉज एनमैट मैंने नहीं दिया था। सीईटी में तो आई एम प्रीटी श्योर 25 क्वेश्चंस तो आते हैं। 25 क्वेश्चंस में इजीली 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस अभी तक की नहीं है आप सबका, एब्स्ट्रैक्ट का अभी तक लेक्चर भी नहीं हुआ होगा। सो क्या करो, इसका सोल्यूशन अभी अभी फिलहाल के लिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, अभी बाद में कल से तो इसका सोल्यूशन रीड करो और सोल्यूशन देखने के बाद इसको समझो, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट के 5 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। कैट में नहीं आता है, कैट में नहीं आता है एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन। सो दिस ये 50 क्वेश्चन है टोटल। अब मैं बताता हूँ, 50 क्वेश्चन में एब्स्ट्रैक्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन सीईटी में आता है। एब्स्ट्रैक्ट को क्या करो अभी के लिए, एब्स्ट्रैक्ट को कल से उसका सोल्यूशन देखो, समझो, जितना समझता है ठीक, नहीं तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लिया करो, समझ जाएगा। हाँ, जी स्ट्रैटेजी आगे जाके समझाई, अभी के लिए नहीं, ठीक है। जिसका डीआई नहीं किया है तो डीआई के प्रैक्टिस करो कुछ सेट्स, उसके बाद नेक्स्ट मॉक में ट्राई करो डीआई सॉल्व करना। जिसने पजल आज तक नहीं किया है उसको पजल ट्राई करना है ये वीक, टारगेट्स है आप सबके। सो ये वीक आपको कुछ पजल ट्राई करना है खुद से, अदर देन द टारगेट्स, डेली टारगेट्स विच यू ऑल आर गेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट मॉक में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ओके, सो आरसी रीड, आरसी अभी मैं नहीं बोल सकता, पर पजल सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो अभी कुछ दिन तक ये वीक, ताकि नेक्स्ट वीक जब मॉक होगा तब उसमें पजल एटलीस्ट यू आर एबल टू डू दोस क्वेश्चंस। टीआई का एक सेट सॉल्व करो
4-5 सेट सॉल्व कर लो ये वीक अदर देन द डेली टारगेट्स, और फिर एब्स्ट्रैक्ट का कुछ ये सोल्यूशन देख लो, एब्स्ट्रैक्ट का एक्स्ट्रा अलग से नहीं बोलता, पर एब्स्ट्रैक्ट के ये सोल्यूशन देख लो. ओके, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज सब मत करो और एल्स आई विल एंड दिस सेशन. चलो, I think we are done with the session. I'm ending the session. Okay, great. You guys need to maintain the decorum of the group. Thank you so much. Okay, sir. अच्छा. Yes, sir. Thank you, sir. चलो, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पोस्ट ऑन द ग्रुप चैट. We have a minute, or else you can ping me on my WhatsApp personally, or ping any doubt solving faculty. Okay, so I think we are done with the section, with this test session analysis. Hope you guys, I will meet you in the next test session, and please practice and please complete your daily targets. Till then, goodbye. Thank you so much. Good night, everyone. Bye bye. Good night. Good night, Nayan, Sheikh, Ibad, Abhishek, Heath. Bye bye. Chalo, bye, guys. Thank you so much for attending the session. Thank you, Amit. Bye 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 bye. Good night. Chalo, bye.